السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا۔ کچھ قسم کے آلات و ادویات کی قیمتوں میں کمی ہونے پر عوام کو ہوگی دستیاب۔ لگژری گھڑی، سگریٹ، گٹکا، شراب کی قیمتوں میں ہوگا اضافہ۔ تلنگانہ پھر ایک بار نظر انداز۔ اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ کا دورہ۔ نظام آباد و مختلف قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے لیا شہر کے حالات کا جائزہ۔ موسرا میں محکمہ آبکاری کانسٹیبل جی سومیا کے آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ انجام دی گئی۔ حکومت نے سومیا کے افراد خاندان میں ایک کو گورنمنٹ ملازمت کے علاوہ 1 کروڑ نقد رقم دینے کا کیا اعلان۔ ریونت ریڈی ایک ناکام سی ایم ہے۔ تلنگانہ کے بابا قوم KCR کو سیٹ کی نوٹس کے خلاف احتجاج کے طور پر نظام آباد میں BRS کی جانب سے انعقاد عمل میں لائے گئے احتجاج دھرنے میں سابقہ وزیر بالکنڈہ MLA پرشانت ریڈی نے کی شرکت۔ سابقہ CM KCR پر حکومت انتقامی کارروائی کے تحت کیے جانے والے اقدامات سے گریز کرنے کے لیے بودھن میں BRS قائدین نے کیا احتجاج۔ آسن پلی میں منعقدہ راستہ روکو احتجاج میں شرکت کرنے والے سابقہ MLA شکیل عامر کو محکمہ پولیس نے کیا گرفتار۔ محکمہ آبکاری کانسٹیبل جی سومیا کی موت پر ریاستی حکومت ملکی بودھن MLA سدرشن ریڈی نے دکھ کا اظہار کیا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ کا دورہ۔ نظام آباد و مختلف قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے لیا شہر کے حالات کا جائزہ۔ آج مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد انچارج و حیدرآباد ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے آج بلدیاتی انتخابات کے مد نظر شہر نظام آباد کا دورہ کرتے ہوئے پارٹی قائدین کے ساتھ ایک اہم اجلاس کو خطاب کیا۔ بعد ازاں شہر نظام آباد کے مالا پلی میں نماز ظہر ادا کرتے ہوئے پارٹی و علاقے کے مختلف قائدین سے خصوصی ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ BJP کے پاس شہر کی ترقی کے بارے میں بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس لیے شہر کے نام کو تبدیل کرنے کی سیاست کر رہی ہے، اور رواں سال اتنی بات 21 نشست پر مقابلہ کر رہی ہیں، اور مکمل 21 نشستوں پر کامیابی کے مکمل امکان ہیں۔ اب کہ ہم صرف چنندہ 21 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورے 21 کے 21 سیٹ مجلس جیتیں گے یہاں سے، نہ کہ نام تبدیل اپنے گھروں میں اپنے نامہ تبدیل کر لیجئے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ بنیادی سہولتیں، بنیادی سطح کے اوپر عوام کی جو تکالیف ہے، عوام کی جو کام ہیں، عوام کے جو مدعے ہیں، اس کی یکسوئی نہیں کر سکتے، اس لیے بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ عوام کو جو تکلیف ہے، عوام کی تکلیف دور کرنا ہے،
الیکشن میں حصہ لینا، عوامی نمائندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی خدمت کریں، عوام کا کام کریں، عوام کی بنیادی سہولتیں دور کریں، نہ کہ نام تبدیل اپنے گھروں میں اپنے نامہ تبدیل کر لیجئے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ عوام آپ کو چن رہی ہے تو آپ کو عوام اپنے کام کے لیے چن رہی ہے، عوام کا کام کرنا مین مقصد ہے۔ اب کہ ہم صرف چنندہ 21 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے 21 کے 21 سیٹ مجلس جیتیں گے یہاں سے۔ انسپائر اسکول کی جانب سے طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے 2 روزہ ایکسپو کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ شہر نظام آباد کے علاقہ برکت پورے میں واقع انسپائر اسکول میں طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے 2 روزہ ایکسپو کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں پہلے دن فوڈ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا اور آج دوسرے دن ایک مکمل سائنس فیئر کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں مختلف زمرے کے تحت طلباء نے اپنے ماڈل تیار کرتے ہوئے انہیں عوام کو سمجھایا۔ اسی طرح طلباء کی ٹیکنیکی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے رواں سال روبوٹکس ایکسپو کا خصوصی اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں طلباء نے اپنے ذاتی طور پر تیار کردہ پروجیکٹس کی نمائش کی، جس کی عوام نے ستائش کی۔ اس تقریب میں باحیثیت مہمان خصوصی گورنمنٹ جونیئر کالج پرنسپل رضی الدین اسلم، ایڈوکیٹ ذیشان رضوی، ڈاکٹر شہیر احمد عمران، جرنلسٹ MPJ علیم قمر، مولانا قیوم شاکر، SIO صدر انصار و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ سلیم قمر محسن خان نے اسکول کی کارکردگی سے واقف کروایا۔ السلام علیکم۔ آج انسپائر اسکول کو یہ روبوٹک ایگزیبیشن کے تحت دیکھنے کا اتفاق ہوا، بہت خوشی ہوئی۔ اتنی چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی محنتیں ہو رہی ہے، بچوں کے جو ایکسپلینیشن ہے، سمجھانے کا طریقہ کار ہے، یا ان کو لوگ جو اپیرٹس اس طرح ارینجمنٹ کرے ہیں، واقعی قابل دید ہے، بہترین ہے۔ یہاں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اساتذہ اور بچوں کے اوپر کافی محنتیں ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ اسکول آگے جانے کے بعد بہت زیادہ ترقی کرے گا، کیونکہ یہ اسکول کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہے ابھی پوری طرح تمام لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہاں بہترین انداز سے روبوٹک طریقے سے یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، سائنٹیفک طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہاں پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے بہت بڑے بڑے اسکولس کے اندر بتائی جاتی ہیں، لیکن میں آج اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں یہاں پر ایک ان اساتذاؤں کی محنتیں سے، ان لوگوں کی، محسن صاحب ہے، ہمارے حکیم قمر صاحب ہے، دیگر اساتذہ صاحبین ہیں، بہت بہترین محنت ہو رہی ہے بچوں کے اوپر۔ یہ روبوٹک جو چیزیں دیکھا ہے بڑے بڑے انجینئرنگ کالج کے بچے بھی نہیں کرتے اس طرح، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس انداز سے ہم کو بتلا رہے ہیں۔ واقعی قابل تعریف ہے، بہترین محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ کہ انہیں اور ترقی دے، کامیاب کرے۔ اور میں آپ تمام سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آ کے ان بچوں کی محنتیں دیکھیے، تبھی پتہ چلے گا۔ مجھے واقعی مجھے بہت تعجب ہو رہا دیکھ کر۔ میں اس طرح کی ایگزیبیشن اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنے چھوٹے بچے اس انداز میں بتلائیں۔ قابل مبارکباد ہے انتظامیہ اور یہاں پر موجود سامعین اور بچوں کی جو تربیت کی ہے، واقعی قابل تعریف ہے۔ PRS پارٹی کے سربراہ و سابق CM KCR کو سیٹ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹس کی مخالفت کرتے BRS قائدین نے راستہ روکو احتجاج کیا۔ نوی پیٹ منڈل کے مقام پر TRS پارٹی منڈل صدر نرسنگ راؤ کے زیر اہتمام TRS پارٹی کے سربراہ KCR کو سیٹ کی جانب سے جاری نوٹس کی مخالفت کرتے مقامی تلنگانہ تلی مجسمے کے پاس دھرنے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر قائدین نے کہا کہ CM ریونت ریڈی KCR پر انتقامی کارروائی کرنے کے تحت پارٹی قائدین پر غیر قانونی مقدمات درج کرتے ہوئے سیٹ پولیس کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی انتخابات کے موقع پر دیے گئے 6 گارنٹیوں کے نفاذ کو نظر انداز کرنے کے لیے سیٹ نوٹس جاری کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے پہلے وزیر اعلیٰ KCR پر ہونے والی سازش کا عوام بغیر جائزہ لے رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کانگریس پارٹی کو مناسب سبق سکھائے گئے۔ بعد ازاں پارٹی قائدین نے ان کے علامتی پتلے کو نظر آتش کرنے کے لیے کی جانے والی کوشش میں محکمہ پولیس کی جانب سے مداخلت کرنے کے باعث قائدین اور پولیس کے درمیان دھکم پیل ہوئی۔ اس دوران ان کے علامتی پتلے کو بازوق کر دیا گیا، جس سے پارٹی قائدین نے نعرے لگاتے ہوئے راستہ روکو احتجاج کیا۔
బీఆర్ఎస్ నాయకుల మీద మరి ఈరోజు అక్రమంగా శాంతియుతంగా చేసుకుంటే పోలీసు వాళ్ళు అడ్డుకోవడం అనేది ఈ దుర్మార్గ చర్యము. ప్రభుత్వానికి తొత్తు కాస్తా ఉన్నారు ఇవాళ పోలీసు వాళ్ళు. మేము ప్రజల పక్షాన మాట్లాడుతూ ఉన్నాము, ప్రజలను కోరుతూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. ప్రజలు శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తూ ఉన్నాం. ఏది మాట్లాడినా శాంతియుతంగా మా కేసీఆర్ గారు చెప్పారు, మీరు ఏది ఇచ్చినా నేను వస్తా అని చెప్పి అన్నారు. ఆ విధంగా ఎక్కడిదెక్కడ కేసులు పెట్టుకుంటా, ఎక్కడిదెక్కడ అరెస్ట్ చేసుకుంటా. महकमे आबकारी कांस्टेबल सोमिया की मौत पर रियासती हुकूमती मुशीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने गम का इजहार किया। महकमे आबकारी कांस्टेबल सोमिया की अचानक मौत पर रियासती हुकूमती मुशीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने दुख का इजहार किया। गांजा स्मगलर के हमले में शदीद जख्मी होने वाली सोमिया को बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर कोशिश करते मियारी तिब्बी इमदाद के लिए शहर हैदराबाद के दवाखाने में तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए इलाज के दौरान फौत होने से काफी दुख हुआ है। हुकूमत मंशियात के हमल नकल को रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रही है। महकमे आबकारी कांस्टेबल सोमिया के मौत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इजहार किया। रियासती हुकूमती मुशीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि सोमिया के खानदान को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर सहारा देने का इजहार किया। अवाम दुश्मन पार्टियों के खिलाफ जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल के मराकज पर बीआरएस कायदीन ने सीएम रेवंत रेड्डी के अलामती पुतले को किया नजर आतिश। जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल के मुकाम पर सरपंच धर्मा तेजा और बीआरएस पार्टी मंडल सदर बाला किशन के जेरे एहतमाम अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ने कहा कि रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। इंतखाबात के मौके पर दिए गए 6 जमानतों के जरिए अवाम को बरगलाते हुए इख्तिदार हासिल करने के बाद कोई भी गारंटी का निफाज न करने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि बुजुर्गों को हर माह 4,000 रुपये का वजीफा फराहम करने का वादा करते हुए धोखा देना आपको जेबा नहीं देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के पहले वजीर आला केसीआर के दौरे इख्तिदार में न सिर्फ तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया बल्कि शहर और मंडल से मुत्तालिक मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए अवाम की तारीफें बटोरने का एजाज साबिका सीएम केसीआर को हासिल होने का इजहार किया। इस एहतजाज में किष्टापुर संजय बी रवि आटू साई बाबा के अलावा दीगर ने शिरकत की। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ అటకెక్కి రైతు భరోసా కానీ రైతు భరోసాకు 2 పంటలకు 15,000 చొప్పున ఇస్తా అని చెప్పేసి 12,000 రూపాయలు కూడా ఏ ఒక్క రైతుకు ఇవ్వలేదు. రైతు భరోసా కింద ఏ పథకం అందలేదు. పింఛన్లు 4,000 రూపాయలు వృద్ధులకు బీడీ కార్మికులకు 4,000 రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పింది. 4,000 రూపాయల పింఛన్ కూడా ఇవ్వలేదు. మరియు 6,000 రూపాయలకు దివ్యాంగులకు 6,000 రూపాయలు పింఛన్ చేస్తాను. ఆ పింఛన్లు కూడా ఇవ్వలేదు ఈ ప్రభుత్వం। वेलपुर मंडल के मुकाम पर तेलंगाना के पहले वजीर आला केसीआर को सीट की नोटिस के खिलाफ एहतजाज के तौर पर भारी रैली का किया गया इनेकाद। वेलपुर मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी के जेरे एहतमाम साबिका वजीर आला केसीआर को सीट के नाम से इंतकामी कार्रवाई के तहत जारी की गई नोटिस के खिलाफ एहतजाज के तौर पर भारी रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी का अलामती पुतले को नजर आतिश किया। इस एहतजाजी धरने में बीआरएस पार्टी के कायदी व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। పట్టించడానికి ఇలాంటి నోటీసులు ఇవ్వడము ప్రజలను మభ్యపెట్టడం జరుగుతుంది। ఇక్కడైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు 420 హామీలు మీరు చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము। కేసీఆర్ పైన గాని కేటీఆర్ పైన గాని मुझ पर एतमाद करते बी फार्म हवाले करने वाले बीजेपी कायदीन को कॉरपोरेटर उम्मीदवार विजय लक्ष्मी यादव ने किया इजहार तशक्कुर। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कॉरपोरेटर उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले विजय लक्ष्मी यादव को पार्टी की जानिब से बी फार्म देने के बाइस इन्होंने इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि मुझ पर एतमाद करते हुए जिम्मेदारी सौंपने वाले रियासती जिले क़ियादत का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए डिवीजन की तरक्की और पार्टी की फतेह के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का इजहार किया।
تلنگانہ تحریک کے لیے جدوجہد کرنے والے عظیم شخص KCR کو سیٹ کی نوٹس کے خلاف احتجاج کرتے بانسواڑہ میں BRS قائد باجی ریڈی گووردھن کی قیادت میں CM ریونت ریڈی کے علامتی پتلے کو کیا نظر آتش۔ بانسواڑہ شہر کے امبیڈکر چوراستے پر BRS قائدین BRS کے سربراہ سابقہ وزیر اعلیٰ KCR کو سیٹ کی نوٹس کے خلاف احتجاج کرتے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا علامتی پتلے کو نظر آتش کیا۔ اس احتجاجی پروگرام میں سابقہ MLA باجی ریڈی گووردھن، بانسواڑہ میونسپل انچارج گرداور گنگا ریڈی، ضلع ریتو بندھو صدر انجی ریڈی کے علاوہ سینئر قائد شیخ زبیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابقہ رکن اسمبلی باجی ریڈی گووردھن نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے لیے تلنگانہ کے حصول کے لیے KCR نے مرکزی وزیر کے عہدے سے نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ اس دن کئی BRS MLAs کو بھی تحریک کے لیے استعفیٰ دینے کے لیے راضی کرنے والے واحد شخص KCR ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک کے دوران تحریک کو ناکام بنانے کے لیے بندوق کو ہاتھ میں لینے والے تپاکی رامڈو ریونت ریڈی عوام کو بناوٹی باتوں کے ذریعے ورقاتے ہوئے CM کے طور پر فتح حاصل کرنے والے ریونت ریڈی نے پہاڑوں کے چٹان پر رہنے والے KCR کو خوفزدہ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی، لیکن یہاں پر رہنے والے تحریک کے قائد KCR خوفزدہ نہیں ہوں گے کیونکہ ریونت ریڈی ایک جرثومہ کے مانند ہونے کا اظہار کیا۔ اس احتجاجی پروگرام میں BRS قائدین و کارکنان کے علاوہ عوامی نمائندے موجود تھے۔ చిన్న వ్యక్తి సూక్ష్మజీవి అలాంటి వ్యక్తి ఒక పెద్ద నాయకుడిని ఒక పర్వతం లాంటి వ్యక్తిని ఢీకొని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। నేను గమనిస్తున్నాయి మనం ర్యాలీ పోతున్నాము, మన ర్యాలీ చూసి చాలా మంది ప్రజలు జై తెలంగాణ అంటారు, చాలా మంది నా కళ్ళకి కానొచ్చు। ప్రథమ ముఖ్యమైన KCR గారు 10 ఏళ్ళు పోరాటం చేసి తెలంగాణ సాధించి 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసినారు। 10 సంవత్సరాల KCR పాలన ఎట్లా ఉండే, ప్రతి వర్గం సంతోషంగా ఉండే, ప్రతి వర్గం రైతులు కానీ, విద్యార్థులు కానీ, మహిళలు కానీ, వృద్ధులు కానీ, మైనార్టీలు కానీ, దళితులు కానీ, బంజారాలు కానీ, ప్రతి వర్గం సంతోషంగా ఉంది। कांग्रेस हुकूमत अवाम को दिए गए वादों में से एक भी वादे को पूरा न करने पर साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने बरहमी जताई। साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों में से एक भी वादे को पूरा नहीं किया और हर एक खातून को 25 रुपये के वादे का निफाज नहीं हुआ और उसके अलावा 2 लाख रुपये के कर्ज माफ करने के वादे का निफाज सिर्फ आधे किसानों को ही दिया गया, बाकी को नजरअंदाज किया। इन्होंने कहा कि KCR की जानिब से 10,000 रुपये देने के वादे को मुतबादिल तौर पर CM रेवंत रेड्डी ने 15,000 रुपये देने का वादा करते हुए जारी स्कीमात से 3 स्कीमों को मनसूख किया और फी कुंटल 500 रुपये बोनस देने के वादा करते हुए अब इंतखाबात के मौके पर देने का वादा करते हुए धोखा दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तुलबा को 5 लाख तालीमी भरोसा कार्ड और तालिबात को स्कूटी फराम नहीं की। इन्होंने कहा कि पहले साल 2 लाख नौकरियां नहीं है तो 4,000 रुपये बेरोजगारी अलाउंस का देने के वादे को फरामोश करते हुए धोखा देने का इजहार किया। ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక తిట్లు తింటున్న ముఖ్యమంత్రి ఎవడు అంటే రేవంత్ రెడ్డి। ఎందుకు ఆ రోజు ఎన్నికలప్పుడు ప్రతి మహిళకు 2,500 రూపాయలు గవర్నమెంట్ జాబిస్టుకు వేసినట్టు బ్యాంకులో వేస్తా అని చెప్పింది మొదటి తారీఖు నాడు। ఇప్పటికీ 2 సంవత్సరాలు 2 నెలలు అయిపోయింది, ఒక్క పైసా కూడా వాళ్ళే ఏ మహిళకు కూడా। హామీలు గాలిలో కలిసిపోయాయి, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయ पार्लियामेंट में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने बजट पेश किया। तफसीलात कुछ इस तरह से है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की जानिब से मुतारफ करदा बजट में लिए जाने वाले फैसले के तहत कुछ किस्म के आलात और अद्वियात की कीमतें कम करके 10 में लाई जा रही है। इस तनाजुर इस बजट के असर से कीमतों में इजाफा होगा, वो कीमतों में कमी आने का मुशाहिदा करेंगे। कीमतों में कमी होगी। गैर मुल्की टूर पैकेज, इन पर टैक्स कलेक्ट एट सोर्स TCS को 2% तक कम किया है। गैर मुल्की तालीम, जिस पर TDS को LRS के तहत तालीमी अखराजात के लिए कम किया है।
अल्कोहल, लिकर और कुछ किस्म के मादनियात पर कस्टम ड्यूटी 5% से 2% तक कम किया है और शू अपर की बरामदात के लिए दरकार मेटेरियल को दरआमद की ड्यूटी को फ्री करार दिया। सोलर पैनल्स इससे मुतालिक अहम मेटेरियल पर BCD को अलहदा किया है। एनर्जी ट्रांसमिशन के आलत इस पर BCD को अलहदा किया। कैपिटल गुड्स, क्रिटिकल मिनरल्स पर BCD को मिन्हा किया जाएगा। जाती इस्तेमाल के आलात पर BCD 20% से 10% तक कम होगा। कैंसर, नायाब बीमारियों और डायबिटीज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले 17 किस्म के आलात पर BCD को अलहदा किया गया है। हमारे मुल्क के साहिल पट्टी से लेकर खुसूसी इक्तिसादी जोन तक संबंधित ज़खायर में हमारे माहिरगिरों के हाथों पकड़ी गई मछलियाँ और इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियाँ हिंदुस्तान में बनाए गए स्मार्टफोन और इनके कीमतों में इजाफा होगा। आमदनी के तफसीलात ना बताने पर जुर्माने में 100% का इजाफा। गैर जाहिर शुदा मनकुला असासों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेनिंग, जरी, घड़ी, शराब, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, कापी, रोस्टिंग और वेंडिंग मशीन खाद के कुछ अक़साम पर दरआमद की फीस कम की गई है। Reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial तेलंगाना हुकूमत में महकमे आबकारी कांस्टेबल जी सोमिया के अफराद खानदान को माली इमदाद देने का किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे आबकारी कांस्टेबल जी सोमिया के अफराद खानदान को माली इमदाद देने का ऐलान किया। रियासती वजीर जुप्पली कृष्णा राव ने कहा कि इनके अफराद खानदान में से एक को गवर्नमेंट मुलाजिमत के अलावा 1 करोड़ नकद रकम देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि फराइज अंजाम देते हुए सोमिया अपनी जान खोने से काफी दुख हुआ है। इनके अफराद खानदान को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर सहारा दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि महकमे आबकारी में फराइज अंजाम देने वाले पुलिस को असला फराहम किया जाएगा। निजामाबाद में 23 जनवरी को गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकिल करने वाले गिरोह को गिरफ्त में लेने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए सोमिया की जानिब से की गई कोशिश के दौरान गैर कानूनी गिरोह के कार से दी गई टक्कर पर शदीद जख्मी होने के बाइस हैदराबाद के निम्स में सोमिया को तिब्बी इमदाद फराहम किया। वहां पर तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए गुज़िश्ता शब फौत हुई। मुल्क भर के अक़लियतियों के लिए सिर्फ 3,400 करोड़ का बजट, मरकज का बजट तेलंगाना से भी कम। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने मरकजी बजट 2026-27 पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि बीजेपी क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर अक़लियतों की फलाह व बहबूद को तरजीह देने में नाकामी का सबूत दिया है। हालांकि मजमूई बजट के हजम में गैर मामूली इजाफा किया गया है। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की जानिब से पेश किए गए बजट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए शब्बीर अली ने कहा है कि 2026-27 के लिए वजारत अक़लियती उमूर को महज 3,400 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। 3,395 करोड़ रुपये रेवेन्यू और सिर्फ 4.38 करोड़ रुपये सरमाया जाती अखराजात के तहत है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये इजाफा बामुश्किल 50 करोड़ रुपये है, जबकि मजमूई मरकजी बजट में जबरदस्त इजाफा हुआ है। शब्बीर अली के मुताबिक 2025-26 में मरकजी बजट
बजट का हजम तकरीबन 50.65 लाख करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर अंदाजा 53.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी एक ही साल में 2.85 लाख करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि इतने बड़े इजाफे में से अक़लियतों के हिस्से में सिर्फ 50 करोड़ रुपए आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत की तरजीहात क्या है, जबकि अक़लियती मुल्क की आबादी का 15% से जायद हिस्सा है। इन्होंने निशानदेही के मुल्क भर में अक़लियती फलाह के लिए मरकज़ी हुकूमत की मजमूई रकम अब कई रियासतों की इनफरादी अखराजात से भी कम है। शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार तेलंगाना ने ही 2025-26 में महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए मुख्तस किए, जबकि कर्नाटक ने भी मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए 4,000 करोड़ रुपए से जायद की रकम अक़लियतों के लिए रखी है। शब्बीर अली ने कहा कि यह अदद व शुमार एक तशवीशनाक हकीकत को बेनकाब करते हैं। पूरे मुल्क के लिए मरकजी हुकूमत अक़लियतों पर इतना भी खर्च नहीं कर रही है जितना तेलंगाना जैसी एक रियासत कर रही है। हालांकि मरकजी बजट दसियों लाख करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है। इन्होंने मजीद कहा कि बजट के तनासब से भी रियासती अक़लियती फलाह के लिए निस्बतन ज्यादा संजीदा है। तेलंगाना ने अपने बजट का तकरीबन 1.18% अक़लियतों के लिए मुख्तस किया है, जबकि मरकजी हुकूमत का हिस्सा मजमूई कौमी बजट में इशारिया के भी एक छोटे हिस्से के बराबर है, जो शुमारियाती तौर पर निहायत मामूली है। शब्बीर अली ने कहा कि तालीम का शोबा मुसलसल मरकजी बजटों की मात झील रहा है। अक़लियती तुलबा के लिए स्कॉलरशिप, फेलोशिप और तालीमी इमदादी स्कीमात या तो जमूद का शिकार है या कमज़ोर हो चुकी हैं, जिससे बिलखुसूस पहली नस्ल के तुलबा मुतासिर हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से मुत्तालिक प्रोग्रामों को भी खातिर ख्वाह मदद नहीं दी गई है, जिससे अक़लियती नौजवानों के रोजगार के मौक़े मुतासिर हो रहे हैं। तवील मुद्दती मुआवजा करते हुए शब्बीर अली ने याद दिलाया कि 2013-14 में जब मजमूई मरकजी बजट 16.65 लाख करोड़ रुपए था, इस वक्त कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए हुकूमत ने अक़लियती फलाह के लिए 3,531 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। इन्होंने कहा कि आज जब मरकजी बजट बढ़कर 53.5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, तब अक़लियतों के लिए मुख्तस रकम घटकर 3,400 करोड़ रुपए रह गई है। ये जमूद नहीं बल्कि वाज़े पिसपाई है। इन्होंने ये भी कहा कि 2025-26 और 2026-27 के दरमियान मरकजी बजट में होने वाला 2.85 लाख करोड़ रुपए का इजाफा तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मजमूई अक़लियती बजट से कई गुना ज़्यादा है। इन्होंने कहा कि जबकि हुकूमत एक ही साल में बजट में इतना बड़ा इजाफा कर सकती है, तो अक़लियतों के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपये बढ़ाने का जवाब पेश नहीं किया जा सकता। यूपीए दौर का हवाला देते हुए शब्बीर अली ने कहा कि वज़ारत अक़लियती उमूर 2006 में कायम की गई थी और इसका बजट 2006-07 में 144 करोड़ रुपये से बढ़कर 2013-14 में 3,531 करोड़ रुपये तक पहुंचा था। इनका इल्ज़ाम है कि बीजेपी हुकूमत के दौर में न सिर्फ हकीकी मानों में बजट में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि फंड्स के इस्तेमाल की शरह भी मायूस कुन रही है। इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा इन आदाद व शुमार से पूरी तरह झूठा साबित हो जाता है, जब एक बजट एक बार फिर अक़लियतों की मुनज़्ज़म नज़र अंदाजी को बेनकाब करता है। शब्बीर अली ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियतियों के लिए तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और रोज़गार से मुत्तालिक प्रोग्रामों के लिए खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस किए जाएं, क्योंकि शमूलियत ही समाजी इंसाफ और पायदारी कौमी तरक्की की बुनियाद है। इन्होंने बीजेपी वाली इंडिया हुकूमत पर तेलंगाना को भी मुसलसल नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। शब्बीर अली के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो फीस 2 रेंजल रंग रोड, मूसी नदी की बहाली और आंध्र प्रदेश तंजीम 9 एक्ट 2014 से मुतालिक वादों को तकमील के लिए फंड का मुतालबा किया था, लेकिन बजट में इनका कोई वाज़ेह जिक्र या तखसीस नहीं की गई। इन्होंने कहा कि अमूदी टैक्स तकसीम बदस्तूर 41% पर बरकरार है, जबकि 50% का मुतालबा किया जा रहा था और ना ही माली खिसार की हद में कोई नरमी की गई है।
सिट तहकीकात के नाम पर साबिका सीएम केसीआर को तहकीकात के लिए तलब करना बुज़दिलाना हरकत होने का बोधन के साबिका एमएलए शकील आमिर ने किया इजहार। साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों में से एक भी वादे को पूरा नहीं किया और हर एक खातून को 25 रुपये के वादे का निफाज नहीं हुआ और उसके अलावा 2 लाख रुपये के कर्ज माफ करने के वादे का निफाज सिर्फ आधे किसानों को ही दिया गया, बाकी को नजरअंदाज किया। इन्होंने कहा कि केसीआर की जानिब से 10,000 रुपये देने के वादे को मुतबादिल तौर पर सीएम रेवंत रेड्डी ने 15,000 रुपये देने का वादा करते हुए जारी स्कीमात से 3 स्कीमों को मनसूख किया और फी कुंटल 500 रुपये बोनस देने के वादा करते हुए अब इंतखाबात के मौके पर देने का वादा करते हुए धोखा दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तुलबा को 5 लाख तालीमी भरोसा कार्ड और तालिबात को स्कूटी फराम नहीं की। इन्होंने कहा कि पहले साल 2 लाख नौकरियां नहीं है तो 4,000 रुपये बेरोजगारी अलाउंस का देने के वादे को फरामोश करते हुए धोखा देने का इजहार किया। बालकोंडा बीआरएस कायदी ने साबिका सीएम केसीआर को सिट की नोटिस के खिलाफ एहतजाज के तौर पर बैक रैली का किया इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर टीआरएस कायदी ने बैक रैली का इनेकाद अमल में लाया। साबिका सीएम और टीआरएस के सरबराह केसीआर को सिट की नोटिस के खिलाफ एहतजाज के तौर पर हुकूमत के अलामती पुतले के साथ शहर में रैली का इनेकाद अमल में लाने के दौरान वर्नेल एक्स रोड के पास अलामती पुतले को नजर आतिश करने के लिए की जाने वाली कोशिश के दौरान एसआई शाही लेंदर ने रुकावट फराहम करने से टीआरएस कायदीन व कारकुनान कदीम कौमी शाहराहों पर कुछ देर तक एहतजाज किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में मंडल टीआरएस सदर परवीन रेड्डी, बालकोंडा किसान नगर सरपंच जी रमेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 60 डिवीजन के लिए 977 कागजात नामजदगी दाखिल करने के बिना पर 6 नॉमिनेशन को मुस्तरद करने का हुक्काम ने किया इजहार। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में कुल 60 डिवीजन मौजूद है। इसमें 647 उम्मीदवारों ने 977 पर्चा नामजदगी मुख्तलिफ पार्टियों से दाखिल की। ओहदेदारों ने 6 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल सही न होने पर मुस्तरद किया। फिलहाल 737 कागजात नामजदगी को मंजूरी दे दी गई है। एएपी पार्टी से 1 उम्मीदवार और बीजेपी से 193 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल करने के बिना पर बीजेपी से 4 और सीपीएम से 3, कांग्रेस पार्टी से 248 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किया और एआईएमआईएम से 70 उम्मीदवार और बीआरएस से 103 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया। टीडीपी से दोनों ने नॉमिनेशन दाखिल किया और मुख्तलिफ पार्टियों से 67 उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 96 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल करने का कमिश्नर दिलीप कुमार ने इजहार किया। रेवंत रेड्डी एक नाकाम सीएम होने का बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन हल्के में साबिका एमएलए बी गणेश गुप्ता के जेर एहतमाम बीआरएस पार्टी कायदी ने साबिका सीएम केसीआर को सिट की नोटिस के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इनेकाद अमल में लाई गई बैक रैली में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में साबिका वजीर आला केसीआर पर इंतकामी कार्रवाई के तहत सिट की नोटिस जारी करते हुए की गई हरकत को बुज़दिलाना हरकत करार दिया। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का इजहार किया। महकमे आबकारी सोमिया के मौत पर रियासती हुकूमती मुशीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने दुख का इजहार किया। जिला निजामाबाद के मोसरा मंडल से ताल्लुक रखने वाले एम साइलू व चंद्रा कुला के एक अकलूती दुख्तर महकमे आबकारी कांस्टेबल जी सोमिया शहर के माधव नगर के पास गांजा मुंतकिल करने वाले गिरोह के हमले में शदीद जख्मी होने वाली खातून कांस्टेबल सोमिया को जिला निजामाबाद के खांगी हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के बाद तिब्बी अमला ने सर्जरी करते हुए मुतासिर गुर्दे को अलहदा किया और 2 दिन के बाद इन्हें मियारी इलाज और मुआलजे के लिए आला ओहदेदारों की जानिब से हैदराबाद के निम्स में मुंतकिल करने के बायस जेर इलाज गुज़िश्ता शब फौत हुई। महकमे आबकारी कांस्टेबल जी सोमिया की मौत पर इनके अफराद खानदान रिश्तेदारों के अलावा गांव में गम की लहर दौड़ गई। आला ओहदेदारान और साथी मुलाजिमीन ने खिराज अकीदत पेश की। आबाई मुकाम मोसरा देहात में जी सोमिया की आखिरी रसूमात को दोपहर 3 बजे इनकाद अमल में लाने के ताल्लुक से बताया गया।
नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया। कुछ किस्म के आलात व अद्वियात की कीमतों में कमी होने पर आवाम को होगी दस्तयाब। लग्जरी घड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब की कीमतों में होगा इजाफा। तेलंगाना फिर एक बार नजरअंदाज। असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का दौरा। निजामाबाद और मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात करते हुए लिया शहर के हालात का जायजा। मोसरा में महकमे आबकारी कांस्टेबल जी सोमिया के आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी गई। हुकूमत ने सोमिया के अफराद खानदान में एक को गवर्नमेंट मुलाजिमत के अलावा 1 करोड़ नकद रकम देने का किया ऐलान। रेवंत रेड्डी एक नाकाम सीएम है। तेलंगाना के बाबा कौम केसीआर को सीट की नोटिस के खिलाफ एहतजाज के तौर पर निजामाबाद में बीआरएस की जानिब से इनकाद अमल में लाए गए एहतजाज धरने में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। साबिका सीएम केसीआर पर हुकूमत इंतकामी कार्रवाई के तहत किए जाने वाले इक़दाम से गुरेज करने के लिए बोधन में बीआरएस कायदीन ने किया एहतजाज। आज चंदपल्ली में मुनाकिदा रास्ता रोको एहतजाज में शिरकत करने वाले साबिका एमएलए शकील आमिर को महकमे पुलिस ने किया गिरफ्तार। महकमे आबकारी कांस्टेबल जी सोमिया की मौत पर रियासती हुकूमत की मुखिया बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने दुख का इजहार किया। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।